بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. إن شاء الله تعالى ہم آج سے النحو الواضح في قواعد اللغة العربية اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں مختصر سی کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالی اس کو ذکر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو کتاب کا نام ہے النحو الواضح، واضح نحو، تو اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یا ہم میں سے اکثر، یہ تو میں امید کرتا ہی ہوں کہ میں نے یہاں کیونکہ ایلیجیبلٹی ہی رکھی تھی کہ بیسک گرامر تھوڑا بہت ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھ پائے۔ تو رہی بات اللغة العربیہ، عربی زبان اس کی، تو اس کا تعارف وہ تو ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہے، لیکن مختصر میں یہ کہوں کہ اللغہ اس کی تعبیر یہ ہے، لغہ ہم کہتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کچھ ساؤنڈز کو جو منہ سے نکالے جاتے ان سے دوسرے کسی انسان تک کوئی وہ بات پہنچانے کا۔ ایک انسان دوسرے انسان تک کوئی بات پہنچانے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ساؤنڈ، الفاظ ادا کرے اور دوسرے انسان کو کوئی بات سمجھ آ جائے، تو اس کو ہم زبان کہتے ہیں، اللغہ، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں۔ اس لغہ کے بارے میں مختصر سی اور تفصیل یہ ہے کہ ہم نے اللغہ العربیہ، عرب کی زبان سیکھنی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ عرب کون سے عرب اور کب کے عرب، کیونکہ عرب بہت ٹائم پہلے کے بھی تھے، ابھی کے بھی ہے، مختلف علاقوں کے ہے، ان کی کنورسیشن اور جو ہم کلام ہونے کا طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو الگ اس اعتبار سے کہ مصریوں کی عربی الگ ہے، جس کو ابھی ہم کہتے ہیں، اور دوسری کسی جگہ سعودی کی الگ، سیریا کی الگ وغیرہ۔ تو ہم کس عربی کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ عربی ہے جس کو آپ قرآنک عربک کہتے ہیں، لیکن قرآنک عربک مخصوص اگر ہم صرف قرآن کی عربی کو ہی کہیں تو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، تو قرآن خود عربی زبان کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ قرآن اسی عربی زبان میں ہے۔ تو اس عربی کے بارے میں یاد رکھے، اور آج یاد رکھ کر کے ہر ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جب تک بھی عربی پڑھنا ہو، وہ یہ ہے کہ ہم عربی کون سی پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی۔ ٹھیک، یہ تو ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ہی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کا جو دور تھا وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے وہ بھی۔ لیکن اس کی حد بندی مؤرخین نے، نحویین نے، لغویین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 150 سال پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 150 سال، یہ 300 سال جو لوگ عربی بولا کرتے تھے ان کی عربی مراد ہے۔ اس میں اسلام، کافر ہونا، مسلمان ہونا، اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق بندی نہیں، بس اتنی سی بات ہے جو تب کے لوگ وہاں کے، ہم کہتے ہیں سعودی عربیہ بھی، وہاں کے جزیرۃ العرب کے لوگ جو کلام کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور اس دور میں یہ عربی محفوظ تھی، محفوظ، اس میں کوئی ادخال نہیں تھا، کسی قسم کا
शक व शुबा नहीं था कि ये सही अरबी बोली जा रही है, गलत अरबी बोली जा रही है। ठीक है, तो फलां जो है ये पढ़ा लिखा नहीं तो इसकी अरबी गलत है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज थी, वो उसको हम कहते हैं अरबी में मलका। मलका, उनमें से हर किसी के पास मलका था। क्या माना मलका? मलका माना, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। ठीक, मिसाल के तौर पर मुझे कहना है कलम महंगा है। मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपने किसी साथी से ये कह दूं कि कलम महंगा है। ये मुझे जो कहना है कलम महंगा है, ये मेरे जहन में एक थॉट है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, कोई बात है, इसको मैं कन्वे कर रहा हूँ। लेकिन मैं कन्वे कैसे कर पाऊंगा? मेरा मेरी जो जुबान है वो इस एतबार से जुड़ी हुई है मेरे जहन के साथ कि मुझे इस बात पर उबूर है, इस चीज पर उबूर है कि कौन सा लफ्ज मुझे अदा करना पड़ेगा ताकि ताकि दूसरे को ये बात कन्वे हो जाए कि ये कलम महंगा है। मैं सोचता नहीं कि मुझे कहना पड़ेगा इशारा के लिए ये, फिर जो चीज़ जो है कॉस्टली होती है उसको उर्दू में कहते हैं महंगा। फिर ये सोचूंगा कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे लास्ट में कहना पड़ेगा है। नहीं, ये मैं सोचता नहीं उतना। बल्कि होता ये है कि जैसे ही मैं सोचता हूँ जहन में, मेरी जुबान उस बात की जो मेरे जहन में है खुद तायद कर लेती है और खुद अपने अंदाज से उसको पेश करती है सामने। ठीक, इसको कहते हैं मलका। या हम कश्मीरी में मतलब कश्मीरी जुबान इस्तेमाल करते हैं। फ्लुएंटली आप किसी से बात करें, आपको ये जहन में नहीं है कि मुझे अब कहना है आ, हामिद सावगर। सो आपने जहन में कहना है हामिद सावगर, सो अल्फाज खुद आपके जुबान पे आ जाएंगे कहना क्या है। ठीक है, सो किसी चीज़ पर उबूर होना, तब आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, आप हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ये ऑटोनॉमस फंक्शन आपकी बन जाती है। ऐसा ही उनमें मलका था। उनमें से जब कोई बंदा कहता था हामिदुन फिल मस्जिद, हामिद मस्जिद में है, तो वो ये सोचता नहीं था कि मुझे पहले इसम लाना पड़ेगा, फिर हरफ जर फी लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो इसम आएगा उस पे फी लगने की वजह से जेर आएगी, इतना सोचना नहीं था। ठीक, बल्कि वो उनकी जुबानों पर खुद एक मलका था। अभी मैं क्यों ऐसी चीजें बता रहा हूँ आपको? मसला ये है कि ये मलका जैसे ही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जैसे ही दौर आया, मसला ये हुआ कि जो आजिम थे, गैर अरबी लोग थे, वो अरबों के साथ मिलने लगे, मुसलमान बन गए, मिलने लगे। तो हुआ ये कि अरबी जुबान जो है वो मुख्तलिफ होने लगी। उसमें अरबी अल्फाज के साथ साथ गैर अरबी अल्फाज भी ऐड होने लगे। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना, ऐड होने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू कर रहा था, बीच में ही ऐड वर्ड मैंने इंग्लिश का डाल दिया। ठीक, तो इसकी वजह यह है कि जब मेरी उर्दू के साथ इंग्लिश भी मैं पढ़ता हूँ, हाँ बोलता हूँ, सो इन दोनों के अल्फाज मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये अलग जो है स्पीशी की लैंग्वेज है, ज़्यादा उनमें इदगाम नहीं होगा। सीधे पता चलता है कि एडवर्ड इसने इस जुबान से बोला, और जो है ये लफ्ज़ इस जुबान से बोला। लेकिन जो ही ऐसी जुबानों का इदखाल हो गया अरबी में, जो अरबी नहीं थी लेकिन मिलती जुलती थी अरबी से, तो अरबी की हिफाजत की ज़रूरत पड़ गई। और हिकायतन यानी बयान किया जाता है, इस बात की कोई सनद नहीं है, बयान किया जाता है कि लोग आए, और उनमें से खास अबुल असवद अली, ये शख्स आया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और कहा कि अरबी के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इसके हम कवायद को जो है जमा करेंगे, और उन कवायद के साथ हम फिर आखिर में हाँ इनकी तत्बीक दे करके अरबी ज़ुबान को महफूज करेंगे। तो इस कलाम के लास्ट में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हिकायतन में कह रहा हूँ कि कोई सनद नहीं, ठीक है, अरबी किताबों में ऐसा लिखा जाता है, तो उन्होंने कहा उन्हु हादन नहवा, ऐसा ही करो। उन्हु हादन नहवा यानी इफ़ अल हाकज़ा, ऐसा ही करो। तो उन्होंने लफ्ज़ वहां पर इस्तेमाल किया अन नहव, ये होता है मिसल के माना में, ठीक है, ऐसा ही। सो उन्हु हादन नहवा, अन नहवा, उन्होंने जहां पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहीं से इसकी बुनियाद पड़ी कि अब ये ग्रामर बन गया आपका। ठीक है,
अब ये आपका सारा ग्रामर। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, ये रिपीट कीजिए थोड़ा। तो रिपीट क्या कर रहे हैं, कहाँ से, ये सारी बात? तो मैं 16 मिनट से कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा, जो है ना ये वीडियोस वगैरह ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम ये देखेंगे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो आपने बोला है, मैंने कहा उन्हु हादा नहव अबुल अब्दुल्लाह असवद अद्दुअली, कुवैली। अबुल असवद दुअली, अद्दुअली, ठीक है। जी उन्होंने क्या कहा था वापस? उन्हु हादा नहव, उन्हु हादा नहव, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह, इसको हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक, वहाँ रिकेप्चुलेट कर सकते हैं। सो उसके बाद नहव की तासीस की गई, इसकी बुनियाद डाली गई। और नहव किसको कहा जाता है असल में, और वहां से वो है नॉर्मल ग्रामर या जनरल ग्रामर हम कहेंगे। सारे के सारे ग्रामर को कहा जाता है नहव। पुरानी किताबों में, पुराने लिटरेचर में आप पाएंगे। लेकिन अब अभी की अगर हम बात करें, तो इस नहव की या ग्रामर की फुल ग्रामर जो है, उसमें अलग अलग साइंसेस बनने लगे, डेवलप होने लगे। और टोटल आपके पास जो है बेसिक तो दो है, लेकिन उसके अलावा के और 12 है, उसके अलावा के और 12 है। 14 उलूम अरबी ज़ुबान में हमारे बोले जाते हैं। अहमियत के एतबार से और हाजत के एतबार से दो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बुनियाद है अरबी के अन्नहव और असर। वहाँ पर अन्नहव की ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। हम थोड़ा उसी की तरफ पहले आते हैं, फिर मजीद इंशाअल्लाह ताला बुक की तरफ, फिर हमने बुक ही पढ़नी है इंशाअल्लाह। लेकिन आज तमहीदन कुछ चीज़ें मैं बयान करूंगा। ये देखें आप, हमने कहा यही नहव, हाँ, नहव माना ग्रामर जनरल। ये वो नहव है जिसको बोला गया उन्हु हादा नहव। अब रही बात इसके अलावा जो इसमें साइंसेस बने, उसमें से मैं कह रहा हूँ दो बुनियादी है, अन्नहव और अस्सर्फ। अब इन दोनों की फर्क क्या है वो समझ लें। मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर अल कलम, अल कलम, अल कलम फिल फिल हकीबती, अल कलम फिल हकीबा, ठीक है। कलम हकीबा बैग में है, अफwan, ठीक है। अल कलम फिल हकीबती, कलम बैग में है। तो अगर आप लफ्ज अल हकीबा को देखें, अल हकीबा नॉर्मली ये था अल हकीबतु, या पहले था हकीबतुन, हकीबतुन। लेकिन जैसे ही आपने इसको जुमले में इस्तेमाल किया, आपने कहा अल हकीबा तु के बदले अल हकीबा ती। तो इस अल हकीबा लफ्ज को, बैग को हम दो एतबारात से देख सकते हैं। एक तो ये है कि एज ए वर्ड ये क्या है, इंडिविजुअल वर्ड, ठीक। सो विदाउट, हमने इसको जो है जुमले में दाखिल करने से पहले कैसा रखा है, कि इसमें चेंजेस आई है तो कैसी आई है, एज ए वर्ड, सिंगल वर्ड। उस, अगर हम ये पढ़े, ये सीखे, वो इल्म आपका आता है असर्फ में। असर्फ, असर्फ माना, सर्फ माना होता है तब्दीली। सर्रफा माना उसने फेरा, चेंज किया। सर्फ यानी तब्दीली, चेंजेस, जो एक वर्ड में चेंजेस हो सकती है। आप कहते हैं मिसाल के तौर पर फेल में ज्यादा, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू वगैरह। तो एक फ़ाला था, उसमें आपने कितनी चेंजेस की, बहुत ज्यादा। इस तरह इसमें भी आप कहते हैं मस्जिदुन, मस्जिदानी, मसाजिद, ठीक है। तो एक वर्ड मस्जिद, एक मस्जिद, मस्जिदानी, दो मस्जिद, दो मस्जिदें, मसाजिद, बहुत सारी मसाजिद, ठीक है। तो एक वर्ड को आप चेंज कर रहे हैं।
अब जमा बनाने के लिए कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन एक वर्ड को आप चेंज कर रहे हैं। अब मसला है कि इस वर्ड को अगर आप किसी जुमले में डाल दें, पहले था अल हकीबतु, अगर आपने इस जुमले को डाल दिया, इस लफ्ज को डाल दिया इस जुमले में, अब ये बना फी लगने की वजह से अल कलमु फिल हकीबती। तो अब आप इसको देख रहे हैं अन्नहव के एतबार से। नहव की डेफिनेशन अब ये है, ठीक है। ये वो इल्म है जो आप एक इसम या किसी लफ्ज के बारे में सीखते हैं कि उसको जब एक जुमले में इस्तेमाल किया जाए उसके साथ क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस। और चेंजेस आती कहाँ है, याद रखना है, ये एक इसम के या फेल के, हम कहेंगे जनरल लफ्ज के लास्ट में जाहिर होती है। इसीलिए इस इल्म को, इल्म नहव को इल्मुल एराब भी कहा जाता है। एराब का इल्म, क्योंकि एराब आप देखते हैं कि वो लास्ट में ही जाहिर होती है। तो इन शॉर्ट, नहव और सर्फ ये बुनियादी दो इल्म है हमारे। अन्नहव यानी ग्रामर की दो बुनियादी इल्म, अन्नहव और असर्फ। असर्फ माना मिन नाहिया अल फर्दिया, यानी एक फर्द या एक लफ्ज के एतबार से। और इसके बाद बाद इदखाली ही फिल जुमला, कि इसके बाद कि आपने इसको जुमले में दाखिल कर दिया, इसमें क्या चेंज आएंगी, वो है आपका अन्नहव। तो अन्नहव, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, उसको आप देख ले, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। वो है इल्मुन, ये एक ऐसा इल्म है युअरफु बिही, जिससे जाना जाता है, हालु अवाखिरिल कलिम, जिससे जाना जाता है कलमे की आखिर की हालत को। क्या ये अल हकीबतु रहेगा, अल हकीबता रहेगा, या अल हकीबती रहेगा? यही वो इल्म है जो हमने पढ़ना है। जो किताब हम पढ़ेंगे उसमें जो है नॉर्मल ग्रामर वाला अन्नहव मुराद है, लेकिन खास तौर से अन्नहव यानी जो आप एराबी इल्म या इल्मुल एराब जिसको हम कहते हैं, वो ही पढ़ा जाएगा। ठीक, ये आपके हो गए बेसिक्स। अब हम आते हैं किताब की तरफ। किताब का थोड़ा सा तारुफ। जो आपकी किताब है जो हमने पढ़ी है इंशाल्लाह, वो 6 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसके 6 वॉल्यूम्स हैं। 3 है स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, प्राइमरी लेवल, और उसके बाद है मिडिल या हम बोलेंगे सेकेंडरी लेवल के लिए, वो और 3 है। सो प्राइमरी लेवल के लिए जो 3 है, वो उनमें से पहली आपके सामने है अन्नहुल वाज़िह फी क़वाइद अल अरबिय्या लिल मरहलतिल इब्तिदाइया। हाँ, इब्तिदाई मरहले के लिए। ठीक, इसके मुसन्निफ 2 है, अली जारिम और मुस्तफ़ा अमीन। ये 2 साहिब इन्होंने ये किताब लिखी है, सीक्वेंस या सीरीज लिखी है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी किताबें मिलती है, जो है बलागा पे, बलागत वाज़िह वगैरह। तो इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है अरबी ज़ुबान के लिए और जदीद जो उसूल है उस पर। तो एक हमारा मसला रह जाता है, वो है मनहजुल किताब, कि ये किताब जो है इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न के लिए ये समझ लें कि ये जो साहिब है, अब मैं साहिब किताब कह लूँ, जो साहिबान है, इन दोनों ने जिनने किताब लिखी है उन्होंने पैटर्न ऐसा रखा है कि ये पहले ऊपर आपको एक हेडिंग बताते हैं, अल जुमलतुल मुफीदा। मिसाल के तौर पर जुमला मुफीदा आपको कह दिया इन्होंने, चैप्टर का नाम। बस इस चैप्टर को या इस चैप्टर के मकसद को समझाने के लिए या इस टाइटल को समझाने के लिए ये कुछ मिसालें आपके सामने रखेंगे, जनरल मिसालें। मिसाल अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। इनको समझाना है जुमला मुफीदा किसको कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। तो इन्होंने एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर रख दिया, या कंप्लीट सेंटेंस के अकसाम की मिसालें यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद ये इन मिसालों को ही एक्सप्लेन करते हुए आपको जो चैप्टर की हेडिंग है उसको समझा देंगे। ठीक, तो आपका आएगा अलबहस के तहत, हो गया तीसरा सेक्शन हर एक चैप्टर का। फिर उसके बाद जो भी आपने मिसालों में और हेडिंग में फिर उसकी शरह बहस में पढ़ा, उसको सम अप करके कवायद की सूरत में आपके सामने रख देंगे। यहाँ पर
कायदा नंबर 1 और 2। फिर लास्ट बुक तक आप देखेंगे कि ये कायदा मिसाल के यहाँ 2 है, दूसरे लेसन में जितने भी होंगे मिसाल 3 है, तो 2 और 3 5, वो नंबरिंग वहाँ पर ऐसे ही चलती रहेगी, 1 2 वहाँ पर 3 4 5 ऐसे होगा। लास्ट बुक तक आपके कवायद जो है नंबर्स के साथ आप तक पहुंच जाएंगे कि कायदा नंबर ये, कायदा नंबर 2 वगैरह वगैरह लास्ट तक। ठीक है, वो हो गया आपका चौथा सेक्शन, वो है कवायद पर। और फिर है आखिरी, वो है तमरीनात, यानी एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस जो आपको ये कराएंगे तमरीनात में, तो वो आपके साथ में होंगी, ताकि जो कवायद आपने पढ़े एक लेसन में उसको अच्छे से आप जहन नशीन कर ले, ताकि कोई भी कायदा आपके जहन से बाहर ना रहे। ठीक है, ये उसूब है 5 जो है लेवल्स का एक एक चैप्टर में। पहला उसमें था, ये वहां से वीडियो बंद करो, पहला था उसमें से चैप्टर का नाम। ठीक है, दूसरा था उसी चैप्टर के रिलेटेड मिसालें, जुमले, मिसालें हम बोलेंगे। फिर तीसरा उन मिसालों को समझाना कि उनके रिलेशन क्या है किसके साथ, चैप्टर के साथ। फिर सम अप करना कवायद की सूरत में कि हमने क्या पढ़ा। और पांचवा ये कि उन कवायद और जो भी आपने पढ़ा उसकी क्या है एक्सरसाइजेस, या उस पर आप जो है महारत हासिल करने के लिए तमरीनात। अच्छा, इन 5 चीज़ों के साथ 2 चीज़ें आपको और मिलेंगी अच्छी खासी। पहला ये है कि उस्लूब क्या होगा किताब पढ़ने में, क्योंकि ये उनके लिए रखी है जिनने बुनियादी कम कलील ग्रामर पढ़ा है। ठीक, अब वो ग्रामर हम पढ़ते हैं या तो ऐसी किताब से जो जिनमें अल्फाज बहुत कम है, अरबी इबारात नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए हल हो जाएगी। अभी इब्तिदाई क्लासेस में मुश्किल लगेगा, फिर काम जो है होता जाएगा वो मुश्किलात जो है, और फिर लास्ट में इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप अरबी किताब पढ़ने के उस्लूब को भी जान लेंगे। हो गया वो तो फिर साथ ही एक्सप्रेशंस जो है ताबीरात आप समझ जाएंगे कि अरबी में बात कैसे की जाती है वगैरह वगैरह, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक और लास्ट बेनिफिट है, वो है वोकेबलरी का। जब आप मिसाल के तौर पर यहाँ पाए, यहाँ आप आते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ है अल बुस्तान, बगीचा, जमील खूबसूरत, कताफा काटा, हाँ कट करना प्लक करना, ठीक, यईशु गुजारना, असमक मछली वगैरह वगैरह। किसी को कोई लफ्ज पता होगा किसी को नहीं, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको वोकेबलरी भी मिलेगी जो आपके अरबी को और ज़्यादा एनहांस करेगी। ठीक है, ये आज का लेसन इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से इन लेसन्स को स्टार्ट करेंगे और इसी उस्लूब को फॉलो भी करेंगे। अब कुछ जो है हम वो सम अप कर दे। कुछ आप में से ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी बुनियादी अरबी नहीं पढ़ी है, बेसिक्स नहीं पढ़ा है। ठीक, सो बेसिक्स के लिए अलग कोर्स है। बेसिक्स के लिए हमारा तो पहले प्लान नहीं था लेकिन वो बन गया, तो वो कोर्स ऐसे है कि मंडे ट्यूसडे और वेनसडे क्लासेस होंगी इंशाल्लाह 8:10 पर, 8:10 पर क्लासेस होंगी अ, हर शाम को इन 3 दिनों हफ्ते में। तो उसमें हमने बेसिक ग्रामर पढ़ाना है। जिसको ये लेवल समझ आएगी तो ठीक है उसके लिए, अब जिसको नहीं आएगी तो उसके लिए वो कोर्स है तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ इस क्लास में वही रहे, क्योंकि खामखा किसी को मुश्किलात, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ इस क्लास में बैठेगा तो उसके लिए मुश्किलात ही होंगी, ज़्यादा फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि तअल्लमुल अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलाम कि अरबी को सीखो क्योंकि तुम्हारे दीन में से है। जो भी हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किया है वो अरबी में ही है, चाहे वो कुरान हो या हदीस हो। ठीक, अगर किसी को इस बारे में कुछ भी कहना है तो वो अपनी मुआरा को पेश कर सकता है।